आज हम शुरू करेंगे बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में कोई भी लिक्विड फिल कर देते हैं। सपोज करिए हमने इस कंटेनर में वाटर फिल कर दिया। ठीक है, और ये वाटर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने इसमें फिल किया है। टेम्परेचर यहां हमने कांस्टेंट रखा है। ठीक है भाई, क्लियर। और देन इसको कवर कर दिया एक प्लेट से। ओके, नाउ इवेपोरेशन, दैट इज द वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सरफेस स्टार्ट्स। सरफेस पर प्रेजेंट लिक्विड मॉलिक्यूल्स get vaporized, change to vapors, and this phenomenon is called as evaporation. इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा और इस इवेपोरेशन की वजह से इस कंटेनर के वैकेंट स्पेस में लिक्विड की वेपर्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। दिस इज द वेपोराइजेशन। आफ्टर सम टाइम दीज वेपर मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक टू द लिक्विड सरफेस एंड गेट इन, और इसके अंदर ये कैप्चर हो जाएगी। गेट इन, कैप्चर हो जाएगी। इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है आप समझने का ट्राई करिए इक्वेशन की फॉर्म में। लिक्विड चेंज टू वेपर्स, लिक्विड चेंज टू वेपर्स एंड वेपर्स चेंज टू लिक्विड। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। एंड वेपर्स का लिक्विड में कंडेंसेशन, लिक्विड में कन्वर्जन, इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम देयर इज एन इक्विलिब्रियम इन दिस कंटेनर, इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर्स। एट दिस स्टेज, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, द प्रेशर exerted by vapors on the surface of liquid and on the walls of container is called as vapor pressure. Okay, so at equilibrium, at state of equilibrium, the pressure exerted by vapors on the surface of liquid and on walls of container, is called as vapor pressure. When equilibrium is achieved between liquid and vapors in this container, the pressure exerted by vapors on the surface of liquid and on the walls of container is called as vapor pressure. Fine, समझ में आ गया। Now we discuss factors affecting the vapor pressure. Vapor pressure को affect करने वाले factors वो कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। अब आप इसको समझने का ट्राई करिए। Now we discuss factors affecting the vapor pressure. So there are two important factors. First is intermolecular forces. Second is temperature. These are two important factors which affect the vapor pressure of a
liquid. Now we discuss them one by one. First of all, we discuss the intermolecular forces. Intermolecular forces of attractions of liquid. Intermolecular forces of attractions of liquid. अब आप इसमें एक समझने का ट्राई करिए. If intermolecular forces of attractions are stronger, then tendency to form vapors will be lesser. ठीक है ना? आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझिए. If strength of intermolecular forces, strength of intermolecular forces of attractions अगर ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्गर है, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी लेसर. मीन्स very simply they represents that those liquids which have stronger intermolecular force of attractions have lower vapor pressure, and those liquids which have weaker intermolecular force of attractions have higher vapor pressure at the same temperature. ठीक है? अब सुनिए. As we know that the strength of intermolecular forces is also reflected in magnitude of boiling points. ठीक है ना? कहने का मीनिंग ये है कि अगर हमें किसी लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पता नहीं है, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के डाटा हमारे पास है, तो वी कैन ऑल्सो conclude about the strength of intermolecular forces as well as vapor pressure of the liquid on the basis of magnitude of boiling point. A very simple correlation between these two is that stronger the intermolecular force of attractions, higher will be boiling point. ऐसे liquids जिनमें intermolecular force of attractions stronger है, उनके boiling points higher होते हैं. समझ गए बात को? तो if we have boiling points of liquid, then we can compare easily the strength of intermolecular forces of attractions. ठीक है? कैसे? जिस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हायर होगी, इट मीन्स उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्गर. तो एक वेरी सिंपल सा लॉजिक, हम इसको बॉइलिंग पॉइंट से भी रिलेट कर सकते हैं. इस पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. देखिए, हम एक बात जानते हैं. क्या जानते हैं वो आप समझने का ट्राई करिए कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर ये स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हायर होगा. समझ गए? क्लियर? तो और हम जानते हैं कि इस केस में वेपर प्रेशर लोअर होगा लिक्विड का. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी लोअर. समझ गए? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया. हम किसी लिक्विड, हमारे पास एक से ज्यादा लिक्विड्स हैं, तो अगर हम लिक्विड्स के वेपर प्रेशर के ऑर्डर को कंपेयर करना चाहते हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, देन वी should have knowledge of strength of intermolecular forces of attractions, or we have the data of boiling point of the liquid. For example, अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. ठीक है? और वो एग्जांपल हम ले रहे हैं, हमने एक कंटेनर में तो लिया इथाइल अल्कोहल. ठीक है? एक तो हम ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल, और दूसरा हम कंपेयर कर रहे हैं
वाटर को, दूसरा हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, वाटर को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इथाइल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, समझ गए। ऑब्वियसली द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन वाटर आर स्ट्रॉन्गर देन इथाइल अल्कोहल। तो द ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें, द ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम है तो इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर हायर होगा और वाटर का वेपर प्रेशर लोअर होगा, समझ गए। बिकॉज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हायर है और बॉइलिंग पॉइंट हायर इट मींस it has stronger intermolecular force of attractions than ethyl alcohol. So if we have data of boiling point of liquids, then we can compare easily their vapor pressures. One more example, वो देखिए आप, वो एग्जाम्पल हम कंपेयर कर रहे हैं एसीटोन, एसीटोन एंड वाटर को लेकर कंपेयर कर रहे हैं, एसीटोन एंड वाटर। अब इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो एसीटोन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है CH3C डबल बॉन्ड O, ये पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर ग्रुप, दैट्स व्हाई द एसीटोन possesses dipole forces of attractions, forces of attractions। एसीटोन में डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर इज ए हाईली पोलर लिक्विड, हाईली पोलर लिक्विड, दैट्स व्हाई वाटर इज ए हाईली पोलर लिक्विड, दैट्स व्हाई इट possesses H bonding, H bonding, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज। तो वाटर possesses hydrogen bonding as intermolecular forces, while acetone possesses dipole forces of attractions as intermolecular forces. As we know, hydrogen bonding is stronger than dipole forces of attractions. That's why the order of vapor pressure at same temperature, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो इनके वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, एसीटोन का वेपर प्रेशर हायर होगा और वाटर का वेपर प्रेशर लोअर होगा। एसीटोन का वेपर प्रेशर हायर क्यों है, क्योंकि इसमें रिलेटिवली वीकर डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर है। किससे स्ट्रॉन्गर है, डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्गर है वाटर में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और एसीटोन में वीकर। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहां से एक सिंपल सा कंक्लूजन निकल रहा है कि इफ वी वांट टू कंपेयर वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड्स, देन वी शुड हैव ईदर नॉलेज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस और द डेटा ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। फाइन, ये फर्स्ट फैक्टर हमने कंपेयर किया है जो अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड। सेकंड फैक्टर टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेकंड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब आप ये इक्विलिब्रियम अगर समझेंगे, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को अगर आप समझने का ट्राई करेंगे, ये इक्विलिब्रियम अगर आप समझेंगे तो एक्चुअली इट इज एन एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम। डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम। दैट्स व्हाई जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा
तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड, दैट इज द greater amount of vapor at higher temperature, it means greater vapor pressure. So with increase in temperature vapor pressure increases. Fine, clear हो गया। तो इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 Kelvin is greater than vapor pressure of water at 283 Kelvin। 300 Kelvin पर वाटर का वेपर प्रेशर हायर होगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 283 Kelvin। ठीक है ना, यहां लिक्विड सेम है, वाटर वाटर, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर की वजह से ये वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया। हालांकि आप इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं। As we know, with increase in temperature, intermolecular forces of attractions weakens, weak हो जाते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस weakens, weak होते हैं, और इसलिए टेंडेंसी टू एस्केप देयर मॉलिक्यूल्स, उन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एस्केप करने की टेंडेंसी यानी वेपर फॉर्म करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और इस तरह से ये वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये टू फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। किसके लिए? फैक्टर्स अफेक्टिंग के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आपको समझना चाहिए, वो पॉइंट क्या है? नॉट द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड doesn't depend upon the surface area through which evaporation takes place। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता है, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे हैं आप बात को? ये सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नेचर से कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड है। मैं आपको सरफेस एरिया वाला पॉइंट समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। एक कंटेनर हमने लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने वाटर फिल किया, वाटर, फाइन, और यहां हमने वाटर फिल किया है 1 लीटर, और इस कंटेनर का टेम्परेचर है 298 केल्विन। 1 लीटर वाटर फिल किया है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, और यहां इसकी वेपर्स फॉर्म हो रही है, और सपोज करिए यहां वेपर प्रेशर, इस केस में वेपर प्रेशर हमने अज्यूम कर लिया कि सपोज करिए वो P1। ठीक है, अब एक दूसरा कंटेनर आप कंसीडर करें, जिसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। ठीक है, हमने यहां वाटर फिल कर दिया, और सपोज करिए सरफेस एरिया ज्यादा है इसका, और हमने इसमें वाटर भी ज्यादा फिल कर दिया, 3 लीटर फिल कर दिया, लेकिन 298 केल्विन है। यहां वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस केस में सपोज करो वेपर प्रेशर P2 है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में यहां इस लिक्विड का सरफेस एरिया भी ज्यादा है, लिक्विड की क्वांटिटी भी ज्यादा है, लेकिन लिक्विड सेम है और टेम्परेचर सेम। फाइन, एक तीसरा कंसीडर करें, आप तीसरा कंटेनर कंसीडर करें जिसका सरफेस एरिया और भी लार्जर है, सरफेस एरिया और भी लार्जर है। ठीक है, लेकिन हमने सेम लिक्विड फिल किया, दैट इज वाटर, और अब की बार वॉल्यूम थोड़ा कम रख दिया हमने, 0.5 लीटर फिल किया, और टेम्परेचर 298 केल्विन ही रखा। सपोज करिए इन दिस केस द वेपर प्रेशर इज P3। फाइन, अब इस एग्जांपल को कंसीडर करिए, इसमें 2 फैक्टर्स कॉमन है, नेचर ऑफ लिक्विड, वाटर इन ऑल दीज 3 केसेस। वाटर मीन्स सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेम लिक्विड,
टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सेम टेम्परेचर इन दीज थ्री केसेस। अब हम इनके वेपर प्रेशर को कंपेयर करें। अच्छा, डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस है यहाँ सरफेस एरिया, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया थ्रू विच इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड का डिफरेंस है। सेकेंड जो डिफरेंस है क्वांटिटी ऑफ वाटर। लेकिन हम यहां देखेंगे इन तीनों केसेस में वेपर प्रेशर सेम है, P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3। तो वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली नेचर ऑफ लिक्विड एंड द टेम्परेचर। फाइन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वो टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, क्लियर? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए एक जनरलाइजेशन गिवन है। इसकी स्टडीज करी थी राउल्ट साइंटिस्ट ने, और राउल्ट्स ने एक जनरल स्टेटमेंट दिया विच इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। अब देखिए राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, समझने का ट्राई करिए, उसको समझने का आप ट्राई करें। ये कहते हैं कि सपोज करो एक कंटेनर है और हमने इसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया। सपोज करो एक ए कंपोनेंट है, एक बी कंपोनेंट है, ठीक है, और ए की मोल फ्रैक्शन इस लिक्विड स्टेट में XA है और बी की मोल फ्रैक्शन इस लिक्विड स्टेट में XB है। यहां वेपर्स बनेंगे। अच्छा, ये दोनों केस हो सकता है ये दोनों ही वेपर फॉर्म करने में एबल हो। इट इज पॉसिबल दैट बोथ A एंड B आर वोलेटाइल, दोनों ही वेपर्स बनाए। और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक वोलेटाइल हो, यानी कोई एक तो वेपर्स बनाता है लेकिन दूसरा नॉन वोलेटाइल हो, यानी वो वेपर्स नहीं बनाता। दोनों कंडीशंस पॉसिबल। हम अभी ये कंसीडर कर रहे हैं कि बोथ आर वोलेटाइल, तो यहां जो वेपर्स बनेंगी वो A की भी वेपर्स बनेंगी और B की भी वेपर्स बनेंगी। फाइन, A की भी वेपर्स बन रही है और B की भी वेपर्स बन रही है। एक तो ये चीज है। यहां हमने क्या कंसीडर किया है, एक सॉल्यूशन हमने बनाया है जिसमें दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स यानी दोनों वेपर बनाने में कैपेबल है। और इस सॉल्यूशन के बनाते वक्त इस लिक्विड स्टेट में लिक्विड A की मोल फ्रैक्शन X है और लिक्विड B की मोल फ्रैक्शन XB है। अब दोनों ने वेपर्स बनाई है और ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर्स बनी है वो मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऑफ A एंड वेपर्स ऑफ B है। फाइन, हालांकि यहां यह भी हो सकता था कि इन दो कंपोनेंट्स में से कोई एक तो वोलेटाइल होता और दूसरा नॉन वोलेटाइल होता, वो भी पॉसिबल है, वो भी देखेंगे अभी। एक बात और मैं आपको यहां डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये है, एक और कंसीडर करें आप, जो हम इस स्टेटमेंट को डिस्कस करने में एक और टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। अच्छा, इसका सपोज करिए टेम्परेचर है, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है T केल्विन। फाइन, T केल्विन पर ये बात करी जा रही है। अब इस राउल्ट्स लॉ को समझने में हम जो टर्म्स यूज करेंगे, जो वर्ड्स यूज करेंगे, उसमें एक और बात मैं करता हूं। ये जो हमने कंसीडर किया है ये तो एक सॉल्यूशन कंसीडर किया है। दूसरा हम क्या करें, सपोज करिए हमने एक कंटेनर में प्योर A फिल करा, ये प्योर लिक्विड A है, प्योर लिक्विड A, लेकिन टेम्परेचर सेम है अगेन T केल्विन। तो यहां जो वेपर प्रेशर होगा A का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम टर्मिनोलॉजी देंगे P नॉट A। और सिमिलरली अगर हम एक कंटेनर में प्योर लिक्विड B फिल करें, यहां हमने प्योर लिक्विड B फिल किया है, टेम्परेचर सेम है, तीनों केस के टेम्परेचर सेम है, तो यहां जो वेपर्स बन रही है वो सिर्फ B की वेपर्स होंगी और इसके वेपर प्रेशर को हम P नॉट B टर्मिनोलॉजी देंगे। तो इस पूरे रिप्रेजेंटेशन में एक तो हो गई मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, एक हो गया P नॉट A P नॉट B। तो P नॉट A is the vapor pressure of pure liquid A at same temperature
एंड पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो अभी हम राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए यूज करेंगे। हम राउल्ट्स लॉ को समझते हैं। राउल्ट्स ने क्या कहा कि सॉल्यूशन के ऊपर किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट की हम बात करें तो किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट की लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, हम डिस्कस करना चाहते हैं यहां राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की हम बात करना चाहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? राउल्ट्स लॉ। ठीक है ना, इट इज नॉट राउल्ट्स लॉ, वो राउल में कोई एबिलिटी नहीं है, वो कुछ भी नहीं दे सकता। ठीक है ना, राउल्ट्स लॉ देखो आप, राउल्ट्स लॉ क्या कह रहा है? राउल्ट्स लॉ कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए volatile component over solution is directly proportional to the mole fraction of that component in solution। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। फाइन, समझ में आ रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है कि वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। पी यहां रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर नहीं, किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, किसी वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल कंपोनेंट मींस एक वोलेटाइल लिक्विड। जैसे हमने वहां एक्सप्लेन करने से पहले ए और बी, तो जैसे वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट लाइक लिक्विड ए over solution is directly proportional to the mole fraction of that component, means mole fraction of A in solution। तो P proportional to X। फाइन, अब इस proportional साइन को रिमूव करने के लिए हम एक proportionality constant यूज करेंगे, that is P naught is that proportionality constant। What is P naught? P naught is vapor pressure of that component means liquid इन प्योर स्टेट जो हमने उस रिप्रेजेंटेशन में पी नॉट ए और पी नॉट बी से रिप्रेजेंट किया। तो यहां इस इक्वेशन में 3 सिंबल्स 3 टर्म्स हमने यूज करिए। तो वेयर पी इज वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट मीन्स ए लिक्विड वोलेटाइल कंपोनेंट ओवर सॉल्यूशन। ठीक है, पी नॉट ये सॉल्यूशन के ऊपर है और पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ that component in solution। This is the general form of Raoult's law। तो Raoult's law क्या कहता है? किसी कोई सॉल्यूशन हमने बनाया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर हो सकता है वो, तो 2 या 2 से ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो उस सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर्स बनेंगे, तो हर एक के इंडिविजुअल हम बात कर रहे हैं, तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा, किसी एक वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा, वो उस कंपोनेंट की सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वो जो हमने शुरुआत में सॉल्यूशन बनाया है उसके लिए अगर हम इस इक्वेशन को लिखें, इस राउल्ट्स लॉ के इक्वेशन को लिखें, राउल्ट्स लॉ समझ में आ गया, इसके इक्वेशन को अगर हम लिखें उनके लिए, तो ये कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा और आपको क्लियरली समझ में आएगा।
ये हम लिख सकते हैं, ये तो जनरल फॉर्म हो गई। अब मुझे ए के लिए लिखना है तो इसको लिखूंगा वेपर प्रेशर ऑफ ए ओवर सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। समझ में आ गई बात आपको? ये पी ए क्या हो गया? पी ए है वेपर प्रेशर ऑफ ए ओवर सॉल्यूशन। व्हाट इज पी नॉट ए? वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन फेज। ठीक है। और अगर मैं बी के लिए लिखूं वेपर प्रेशर ऑफ बी ओवर सॉल्यूशन, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पी नॉट बी डॉट एक्स बी। तो ये राउल्ट्स लॉ को अब हमने यहां ए और बी लिक्विड के लिए लिख दिया, और ये जो फॉर्म हमने लिखी थी, दिस फॉर्म इज ए जनरल फॉर्म, वो किसी पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर ना? अब हम इस राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करते हैं फॉर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के लिए हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हम सॉल्यूशंस को 2 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तो हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, सॉल्यूशंस पर इसको अप्लाई करेंगे। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। तो अब हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो समझने का ट्राई करो। हम यहाँ 2 पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 2 volatile liquids, solution containing 2 volatile liquids। हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, जो अभी हमने एक्चुअल में राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जांपल लिया था वो यही था, इसी से हमने उसको राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन किया, उसी को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहा है कि सपोज करो एक कंटेनर हमने लिया और उस कंटेनर में हमने 2 लिक्विड्स मिक्स करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करा, एक लिक्विड ए और एक लिक्विड बी। सपोज करो इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में लिक्विड ए की मोल फ्रैक्शन एक्स ए ली और लिक्विड बी की मोल फ्रैक्शन एक्स बी रखी। यहां वेपर्स का फॉर्मेशन होगा और इसमें दोनों की वेपर्स बनेंगी, ए की भी वेपर्स बनेगी और बी की भी वेपर्स बनेगी, और ये किसी कांस्टेंट टेम्परेचर T केल्विन पर पूरा सेटअप रखा है। समझ गए? तो द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि अब मिक्सर हो गया ए और बी का, तो पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म यूज करेंगे। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ए का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे अपन? पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ओवर सॉल्यूशन इज पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, बी का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ओके, these two values, these two vapor pressures are calculated on the basis of Raoult's. Now we want to discuss to obtain vapor pressure of solution, total vapor pressure of solution. So here we have mixture of vapors of 2 liquids A and B, mixture of 2 vapors. तो ये एक mixture of 2 gases हो गया। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस का टोटल प्रेशर हमेशा डेल्टन्स लॉ से निकाला जाता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब यहां लगाएंगे हम डेल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर। तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना, वेयर P इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स टोटल वेपर प्रेशर, सम टोटल वेपर प्रेशर,
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब पी और पीवी ये हमने ये यहां कौन सा लॉ अप्लाई करके ये इक्वेशन बनाई है, डेल्टन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ ए गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन मिक्सचर। तो भाई ये जो सॉल्यूशन के ऊपर मिक्सचर है, ये जो वेपर्स है, एक्चुअली मिक्सचर ऑफ टू गैसेस है, ए की वेपर्स और बी की वेपर्स, तो दोनों के वेपर प्रेशर्स का सम कर दो, तो वो डाल्टन्स लॉ की हेल्प से हमने ऐसा कर दिया। तो यहां से एक फॉर्म, अब इसका ये आ जाएगा P इक्वल्स टू, अब पी ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं P नॉट ए एक्स ए से, और पी बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं P नॉट बी एक्स बी। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दो लिक्विड्स के सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर को फाइंड करने के। सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, ये आपके लिए वेरी यूजफुल फॉर्मूला है। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर हो गया यहां तक? इस फॉर्मूला को हम थोड़ा स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला में भी चेंज कर सकते हैं, इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं, वो समझने का ट्राई करिए। इसको हम चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो है, हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। अब एज वी नो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 और एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी, और सिमिलरली एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो हम इस इक्वेशन में चेंजेस कैसे कर सकते हैं, P इक्वल्स टू P नॉट ए, और एक्स ए, इस एक्स ए को हम सब्सटीट्यूट कर दें 1 माइनस एक्स बी से, प्लस P नॉट बी एक्स बी अगर हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसको थोड़ा चेंज किया जा सकता है, P इक्वल्स टू P नॉट ए, इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस P नॉट ए एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी, हो गया ये। और यहां से क्या हो जाएगा ये, अब देखिए आप इस टर्मिनोलॉजी और इसमें से एक्स बी को आप कॉमन ले लें, तो P नॉट ए प्लस एक्स बी आपने कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन हो जाएगी P नॉट बी माइनस P नॉट ए। ये इसका स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहां अगर आप एक्स बी को रिप्लेस करते हैं 1 माइनस एक्स ए से, तब भी यहां एक इसी तरह का इक्वेशन आ जाता। मैं फिर भी आपको यहां एडवाइस करूंगा कि नो नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला, ठीक है। आप इस नॉलेज को एक्वायर करें, घर पर प्रैक्टिस कर लें एक बार चेंज करने का, मॉडिफाई करने का, लेकिन लर्न तो हमेशा इस फॉर्मूला को ही रखें। देखिए इसको लर्न करने का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, इन प्रेशर ऑफ एग्जाम, इन द एग्जामिनेशन हॉल जो प्रेशर होता है एग्जाम का, वहां आप क्या कर सकते हैं, इसमें साइंस का डिफरेंस है, ये प्लस साइन है, माइनस साइन है, तो हो सकता है आप वहां बाई मिस्टेक ये माइनस और ये प्लस पुट कर दें, और आप इन दोनों को प्लस पुट कर दें और इन दोनों को माइनस पुट कर दें, तो इस वजह से एक सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो सकता है आपका, ठीक है ना, और वो आपको लॉस पहुंचा सकता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, ऑलवेज एडवाइस करूंगा कि आप हमेशा किसी भी फॉर्मूला की सिंपल फॉर्म को लर्न करें, उसका स्पेसिफिक फॉर्मूला लर्न नहीं करें, वो आपको एग्जाम के स्ट्रेस में, एग्जाम के प्रेशर में मिस्टेक कॉमिट करा सकते, मिस्टेक कर सकते हैं, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ये घर पर प्रैक्टिस कर लें आप एक बार, इस तरह से करा जा सकता है, तो एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे, ये बहुत ही थोड़ा टाइम में सारा काम होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम अगला जो टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, वो हम डिस्कस करना चाहते हैं वेपर प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन का प्लॉट हम डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है ना। देखिए ये प्लॉट है, तो हम डिस्कस करना चाहते हैं अब प्लॉट बिटवीन वेपर प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें हम प्लॉट डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है भाई। देखिएगा क्या प्लॉट ये होगा, उसको समझने का ट्राई करें। ये हमने एक ग्राफ पेपर लिया, इस एक्सिस पर हम कंपोजिशन ले रहे हैं,
कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। और कंपोजिशन के लिए हमने जो ऑप्ट करी है वो मोल फ्रैक्शन को ऑप्ट किया है, मोल फ्रैक्शन की टर्म। इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ले रहे हैं इस एक्सिस में, ठीक है ना। ये वेपर प्रेशर की एक्सिस है, वेपर प्रेशर। फाइन। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर यहां एक्स ए इक्वल्स टू 1 है, तो एक्स बी क्या होगा? 0, बिकॉज द सम ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी इन अ बाइनरी सोल्यूशन इज ऑलवेज 1। तो इफ एक्स ए इज 1 देन एक्स बी मस्ट बी 0। एक्चुअली ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है वेयर एक्स ए इज 1 एंड एक्स बी 0, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर लिक्विड ए को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पर प्योर लिक्विड ए है, ठीक है। ये पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये एक्स ए अगर 0 है यहां, तो एक्स बी क्या होगा? 1, और ये प्योर लिक्विड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट। यहां ये जो बीच में है ये कुछ भी हो सकता है। सपोज करो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये एक्स ए इक्वल्स टू 0.8 है, तो एक्स बी इक्वल्स टू 0.2 होगा, ठीक है। अब सुनिए, अब हम पहले ए के लिए बात करते हैं। सबसे पहले हम किसके लिए बात करते हैं? ए के लिए बात करते हैं। एट दिस पॉइंट ए इज प्योर, प्योर ए का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है, तो यहां इस स्टेज पर ए का वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा, जो भी वैल्यू होगी वो लिक्विड के करस्पॉन्डिंग होगी। तो ये पॉइंट जो है वो प्योर ए के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1। ये इस पॉइंट पर है ही प्योर ए, तो प्योर ए है तो उसका वेपर प्रेशर जो भी होगा, तो ये पॉइंट एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है पी नॉट ए को, ठीक है। अब ऑन गोइंग दिस टू दिस साइड, जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो एक्स ए की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ये 1 है, यहाँ 0.8 हो गया, फिर ये डिक्रीज होता होता ये 0 हो गया। और हम जानते हैं, राउल्स ने हमको बताया कि P प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब इस एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होती जा रही है, तो ए का वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा, जो यहां जाकर 0 हो जाएगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रही है। फाइन, ठीक है। अब आप देखिए यहां इस एक्सिस पर, इस जगह, इस पॉइंट पर बी लिक्विड इज इन प्योर स्टेट, प्योर बी है। अब बी का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो प्योर बी का वेपर प्रेशर होगा, और ये पी नॉट बी है। यहां हमने ए को ऊपर और बी का पॉइंट नीचे लिया, ऐसा कोई वो नहीं है। बी का वेपर प्रेशर ग्रेटर देन ए हो सकता है, वो तो दोनों लिक्विड्स के नेचर पर डिपेंड है। अब आप अगर इधर से इधर जाएंगे यूं, तो बी का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होता जा रहा है, जो फाइनली यहां 0 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ अगेन, सिंस P प्रोपोर्शनल टू X, तो ये B का वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा, और डिक्रीज होता 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 ये फाइनली क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है B के वेपर प्रेशर, ठीक है। फाइन। और इन दोनों का अगर हम सम करें इनका, तो ये जो लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ये रिप्रेजेंट करेगी P को, जो कि PA प्लस PB होगा। ये लाइन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लाइन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। फाइन। ये हमने डिस्कस किया प्लॉट बिटवीन वेपर प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। फाइन, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए अगला पॉइंट अब हम डिस्कस करना चाहते हैं इसमें, वो पॉइंट आप समझने का ट्राई करें। इसी से रिलेटेड अभी हम वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। आप समझने का ट्राई करो, इसमें क्या लॉजिक है वो आप समझने का ट्राई करो। वो है, देखिए अभी हमने एक कंटेनर में 2 लिक्विड्स फिल करे थे। देखिए अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए मैं आपको यहाँ कुछ बातें बता रहा हूं। ये 2 लिक्विड्स हमने लिए थे, ए और बी, ए एंड बी। ए की मोल फ्रैक्शन XA और B की मोल फ्रैक्शन XB है, और ये किसी T टेम्परेचर, T केल्विन पर हमने बात करी थी। और इस कंटेनर में यहां ये वेपर्स बन गई। किस किस की वेपर्स बन गई? A की भी वेपर्स बन गई और B की भी वेपर्स बन गई। अगर आप इस सेटअप को ध्यान से देखेंगे
तो इन दिस कंटेनर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इसको हम बोल सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, ये एक लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड स्टेट में है, और ये एक गैसियस सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन और सॉल्यूशन इन वेपर स्टेट, गैसियस सॉल्यूशन और सॉल्यूशन इन वेपर स्टेट। फाइन, यानी कि इस लिक्विड के ऊपर एक गैसियस सॉल्यूशन है और वो गैसियस सॉल्यूशन भी ए और बी का है। तो कई बार समटाइम्स एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है अबाउट कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, मींस कंपोजिशन ऑफ गैसियस सॉल्यूशन ओवर द लिक्विड सॉल्यूशन। तो कंपोजिशन पूछ रहा है, ये एक्चुअली पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि इन दो लिक्विड्स की जो वेपर्स बनी है, उन वेपर्स में, वेपर स्टेट में ए की मोल फ्रैक्शन कितनी है और बी की मोल फ्रैक्शन कितनी है, ये वो पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शंस को हम वाई ए एंड वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई ए और वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई ए एंड वाई बी से। लिक्विड फेज में कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स ए एंड एक्स बी, और वेपर फेज में जो दो कंपोनेंट्स हैं उनकी मोल फ्रैक्शन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वाई ए एंड वाई बी से, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है बात? अब समझने का ट्राई करिए क्या हम यहां डिस्कस करना चाहते हैं, कैसे हम रिलेट करें, हम वाई ए और वाई बी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगेन यहां एक रिलेशन फॉलो होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो रिलेशन क्या फॉलो होगा कि जस्ट लाइक एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, वाई ए प्लस वाई बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये तो एक बेसिक रूल है, मोल फ्रैक्शंस का सम ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, इधर इन लिक्विड स्टेट और इन गैसियस स्टेट, इवन इन सॉलिड स्टेट। अगर कहीं दो सॉलिड्स का मिक्सचर है तो वहां भी मोल फ्रैक्शंस का सम तो इक्वल टू 1 ही होगा, नो डाउट। ये रिलेशन यहां भी फॉलो होगा। अब हम इसको फाइंड करना चाहते हैं, वाई ए की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमने वाई ए निकाल लिया तो सिमिलर पैटर्न पर वाई बी निकाल देंगे, या फिर वाई ए निकाल लिया तो 1 माइनस वाई बी कर देंगे, वाई ए कर देंगे, वाई बी की वैल्यू। अब समझिए ये कैसे निकालें। तो अगेन हम ये इस यहां हेल्प लेंगे इसको फाइंड करने के लिए। क्लास 11th में हमने जो डेल्टन्स लॉ पढ़ा है उसमें एक टॉपिक हमने पढ़ा था, वो मैं आपको यहां बता रहा हूं, वो समझने का ट्राई करिए। हमने पढ़ा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू partial pressure of a component, partial pressure of a component equals to mole fraction of the component in gaseous mixture, क्यों? क्योंकि तो डेल्टन्स लॉ है, डेल्टन्स लॉ तो लगता है गैसियस मिक्सचर पर है, इनटू पी टोटल। ये रिलेशन हमारे पास क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में था। ये इस फॉर्म में नहीं था, एक्चुअली ऐसा नहीं था, ये थोड़ा डिफरेंट था। वो मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंट कैसे था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। मैं आपको बता देता हूँ 11th में कैसे था। एक डेरिवेशन थी स्टेट्स ऑफ मैटर में, पी ऑब्लिक पी टोटल, यहां पी रिप्रेजेंट कर रहा है P1 मान लीजिए किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। तो ये एक रिलेशन वहां डिराइव किया गया है N1 ऑब्लिक N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये एक रिलेशन था। एक्चुअली इसी को तो मैंने इस फॉर्म में लिखा है, ये P1 पार्शियल वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन, और ये मैंने P टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया। फाइन, ये स्टेट्स ऑफ मैटर की नॉलेज से मैं यहां ले रहा हूं। अब सुनिए, अब मुझे वाई ए निकालना है, तो मैं वाई ए कैसे निकाल सकता हूं? मुझे निकालना क्या है एक्चुअली, मुझे ये चीज निकालनी है। तो अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड टोटल, अरे भाई मुझे यही तो निकालना है, ये कंपोनेंट ही तो निकालना है। तो देखिए मैं इसके बेसिस पर कैसे लिख सकता हूं, समझने का ट्राई करना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, तो यानी ए का पार्शियल वेपर प्रेशर ले लिया मैंने, पी ए हो गया है, इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन गैसियस मिक्सचर। तो ए की गैसियस मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन कितनी है, वाई ए इंटू पी टोटल। तो यहाँ पी टोटल का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, पी से रिप्रेजेंट किया है। फाइन, ये आ गया बस।
सिंपल। तो यहां से अपन YA अगर हम निकालना चाहते हैं तो YA इक्वल्स टू PA/P। ये एक फॉर्मूला हो गया। ये मोल फ्रैक्शन निकाली जा सकती है। और क्या निकाला जा सकता है? YA इक्वल्स टू, मैं PA को क्या लिख सकता हूं? P0A XA ऑब्लिक P को क्या लिख सकता हूं मैं? P0A XA प्लस P0B XB, ये लिख सकता हूं। ये एक रिलेशन हो गया जिसकी हेल्प से हम वेपर फेज में किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सिमिलरली YB हो जाएगा P0B XB ऑब्लिक P0A XA प्लस P0B XB। ये फॉर्मूला YB के लिए। और इन दोनों का सम, एज आई टोल्ड ऑलरेडी, YA प्लस YB इक्वल्स टू 1। फाइन, ये हमने डिस्कस कर लिया वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। फाइन, अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करना चाहते हैं। वो सेकंड पार्ट है इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यानी आपकी बार सोल्यूट वेपर फॉर्म करने में एबल नहीं है। सोल्यूट कांट फॉर्म वेपर, सोल्यूट वेपर नहीं बना सकता, सिर्फ सॉल्वेंट की वेपर्स बनी। ठीक है ना? अब सुनिए आप ध्यान से, ये कैसा केस है? ये केस है, ये एक कंटेनर है जिसमें हमने A फिल कर दिया। सपोज करो A हमारा सॉल्वेंट है और ये वोलेटाइल है, और B हमारा सोल्यूट है। B हमारा सोल्यूट है। एक कंटेनर हमने यहां लिया है, ये कंटेनर हमने लिया है जिसमें A सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन हमने XA ली है, और B यहां सोल्यूट है B, और सपोज करो इसकी मोल फ्रैक्शन XB है। अब इसमें से जो A है, सिर्फ A ही वेपर बना सकता है, और प्योर A का जो वेपर प्रेशर है वो P0A है। इसमें से जो सोल्यूट है B, ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि ये वेपर नहीं बना सकता, ये नॉन वोलेटाइल है। और A वोलेटाइल है, समझ गए? A वेपर बना सकता है। तो यहां जो वेपर्स होगी इस कंटेनर में ऊपर, वो सिर्फ किसकी होगी? A की होगी। ठीक है? तो अगेन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ये क्या लिखा जा सकता है? PA इक्वल्स टू P0A XA। ये A की वेपर प्रेशर्स हो गए। ठीक है? और हेयर PB इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो PB क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा जो P इक्वल्स टू PA प्लस PB होता है वो एक्चुअली PA के इक्वल ही रह जाएगा, क्योंकि PB की वैल्यू तो 0 है, ये क्वांटिटी 0 हो गई। तो P इक्वल्स टू PA इक्वल्स टू P0A XA, ये हो जाएगा। यानी कि यहां रिलेशन आ गया P इक्वल्स टू P0A XA। ठीक है ना? फाइन, ये P इक्वल्स टू P0A XA आ गया। और हम यहां ये जो A डेजिग्नेशन है, P0A में जो A डेजिग्नेशन है, वी कैन ओमिट इट। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है इसके लिए जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। आप समझने का ट्राई करिए। मैं इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकता हूं? P इक्वल्स टू P0 XA लिख सकता हूं। ये लिखा हुआ अक्सर ये मिलता है। क्यों लिख सकते हैं? हमने यहाँ A डेजिग्नेशन को क्यों ओमिट कर दिया? एज वी नो PB0 इज 0। ये PB0 तो हो ही नहीं सकता ना। PB0 होता तो वैल्यू 0 हो जाती, सब कुछ ही 0 हो जाता। नहीं, हम A और B कहां लिखते हैं? जहां दो लिक्विड्स है, दोनों के लिए कोई वैल्यू हो सकती है। जैसे ये XA को हम A को ओमिट नहीं कर सकते, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट की भी हो सकती है, तो ये A तो रिटाइन रहेगा। बट इस A को जनरली ओमिट कर देते हैं, और ये फॉर्मूला P इक्वल्स टू P0
एक्सए की टर्म में लिखा जाता है। ये ओमिट इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ क्लियर है कि ये वेपर प्रेशर भाई पी नॉट है तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। अब वो प्योर कंपोनेंट कौन सा होगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल तो सॉल्वेंट की वैल्यू होगी, इसलिए इसको यहाँ ऐसा भी लिख दिया जाता है। ये मैं कहता हूं अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूला के डिफरेंट फॉर्म्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अदरवाइज वो सारे न्यूमेरिकल्स जो किससे रिलेटेड है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड है, सॉरी सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से रिलेटेड है, उन सारे न्यूमेरिकल्स को इस फॉर्मूला से सॉल्व किया जा सकता है। पर इसके थोड़े इजी डेरिवेशंस भी हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, इजी मॉडिफिकेशंस हैं, वो मॉडिफिकेशंस हम डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे कैसे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं वो समझने का ट्राई करिए। अब देखो जरा, हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल्स टू पी नॉट एक्स टी। अब हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, P ऑब्लिक पी नॉट लिख दें इक्वल्स टू एक्स है, ये पी नॉट से डिवाइड कर दिया, एक्स एक इक्वल रहेगा। अब इक्वेशन की बोथ साइड्स को सब वन में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, ये वन माइनस पी ऑब्लिक पी नॉट लिख दें और इसको भी वन माइनस एक्स से लिख दें, इक्वली ट्रीट किया हमने बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ऐसा अलाउड कर सकते हैं। अब हम यहां से क्या करें, अगला स्टेप क्या है हमारे पास, हम यहां से पी नॉट एलसीएम ले लें, तो पी नॉट एलसीएम ले लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी पी नॉट माइनस पी एंड वन माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स बी। एक और मॉडिफिकेशन आ गया इस फॉर्मूला, ये भी इसकी एक वेरी पॉपुलर फॉर्म है। ये एक्चुअली इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने इसको मॉडिफाई किया है और नथिंग, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है, जो ये है वो ये है, बस फॉर्म बदला और कुछ भी नहीं करा। ठीक है ना, क्लियर हो गया, फाइन। अब देखिए वेयर एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वेयर एक्स बी इज मोल fraction of non-volatile solute, non-volatile solute, XB is non-volatile, XB is mole fraction of non-volatile solute। ठीक है, हम इसको और फर्दर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। वो फर्दर चेंजेस देखिए क्या क्या है, वो समझने का ट्राई करिए। हम फर्दर इसको भी मॉडिफाई करेंगे, देखिए कैसे समझने का ट्राई करो कि if number of moles of solute and number of moles, चलो ये लिख देते हैं, if number of moles of solute is n and number of moles of solvent is कैपिटल है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज n एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज n, देन xb इक्वल्स टू स्मॉल n ऑब्लिक स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक टोटल नंबर ऑफ मोल्स, फाइन। Therefore P minus P naught, sorry P naught minus P oblique P naught इक्वल्स टू जो XB था, उस XB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n ऑब्लिक स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो एक ये मॉडिफिकेशन भी यूजफुल हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। फर्दर इसको हम और चेंज करना चाहते हैं। अब यहां एक स्पेशल केस आप देखें, वो स्पेशल केस क्या है वो समझने का ट्राई करें। वो स्पेशल केस है कि इफ सॉल्यूशन इज, एक चीज और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वेयर द टर्म P नॉट माइनस P ऑब्लिक P नॉट, ये होल टर्म इज called as relative lowering of vapor pressure, relative lowering of
वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं इस इक्वेशन में कि इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, अगर सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूटेड है means n is very very smaller than capital N, ठीक है। then small n plus capital N is nearly equal to capital N, क्योंकि ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है तो एक स्मॉलर क्वांटिटी कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू लार्जर क्वांटिटी। ए स्मॉलर क्वांटिटी can be neglected when it is added to a larger quantity। तो इसको हमने यहाँ नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि एडिशन हो रहा था यहाँ एक स्मॉल क्वांटिटी का लार्जर क्वांटिटी। तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N इज नियरली इक्वल टू कैपिटल N। देन देयरफॉर अब आप देखिए वो इक्वेशन P नॉट माइनस P ऑब्लिक P नॉट इक्वल्स टू स्मॉल n, और ये जो स्मॉल n प्लस कैपिटल N था इसको हम केवल कैपिटल N से अप्लाई कर देंगे। तो इट इज फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगेन बी अवेयर इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बिकॉज स्मॉल n इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू कैपिटल N। फाइन, तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। फर्दर चेंजेस देखो, अब मैं इसको और कैसे चेंज कर सकता हूं। जो सबसे पॉपुलर फॉर्म आ जाएगी इसकी वो है मैं स्मॉल n यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल n को मैंने WB/mv लिख दिया, और एक कैपिटल N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को मैं लिख सकता हूं WA/ma। तो ये यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है राउल्ट्स लॉ की, जो कि एप्लीकेबल होती है डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। समझ गए? तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आप ये श्योर नहीं है, क्लियर नहीं है कि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, या फिर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो। और अगर वो डेटा जो न्यूमेरिकल में गिवन है वो ये श्योर करते हैं आपको कि भाई ये एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में ये सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला होता है। अदरवाइज जो हमने सबसे पहले जो इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला जिसको फर्दर हमने मॉडिफाई किया था ये P इक्वल्स टू P नॉट इंटू एक्स है, इस फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। उसी के तो फर्दर मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का पढ़ा हमने शुरू में, फिर हमने सॉल्यूशंस का पढ़ा, फिर सॉल्यूशंस दो तरह के पढ़े, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स। इनको आप ध्यान से पढ़ें, ये थ्योरेटिकल पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया है। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सब बचते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। ये बच्चों वीडियो को आप ध्यान से देखें और इसको लाइक जरूर करें जिससे कि और किसी को भी एडवांटेज मिल सके, और जो इस समय पढ़ना चाहते हैं उनको भी एडवांटेज मिले। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। थैंक यू।